Dear students, let us start our topic every drop counts. That means every drop of water is very important for us because without water we cannot be lived. So every drop of water is very precious. So we should save water. So without water we cannot be lived. So let us start about water. Why water is very important? Let us know about it. So you know that most of the villages of Rajasthan get very little rainfall. So in our India, all places don't get enough water and enough rainfall. So in our India, there are so many villages. Just like in Rajasthan, those villages get very little rainfall. So the rivers there don't have water at all round the year. अगर बारिश कम होगा तो नदियों में पानी रहेगा क्या हर साल भर नहीं रहेगा. जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे विलेज में बहुत कम बारिश होता है, इसलिए उनके नदियाँ में उनके रिवर में साल भर पानी नहीं रहता है. देन दे हैव लेक्स and johars to store water. So to satisfy the need of water they have lakes. What do you mean by lakes? Just like Chilika lakes, and there are some artificial also lakes जहाँ पे पानी रहता है, and johar. So what do you mean by johar? Let us discuss. What is johar? Johar is a rainwater storage tank principally used in the state of Haryana and Rajasthan. So johar is a rainwater storage. It is just like a storage tank. ओके. सो पानी जो टैंक हमारे छत के ऊपर रहता है वो क्यों रहता है? टू स्टोर द वाटर. जस्ट लाइक दैट जोहड़ इज ए रेन वाटर स्टोरेज टैंक. वो रेन वाटर जब आता है जोहड़ में सेव होकर रह जाता है. प्रिंसिपली यूज्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वाटर थ्रू आउट द ईयर. ओके. वो जोहड़ में क्या होता है, वो पानी वहाँ पर स्टोर होकर रह जाता है और वो पानी हम साल भर यूज कर सकते हैं. सो टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग बाय द ह्यूमन एंड कैटल. ओके. सो ड्रिंकिंग ऑफ ह्यूमन्स. ओके. पानी हम पीते हैं कि नहीं? सो पानी पीना हमारे लिए और जैसे कि पशु पक्षी सबके लिए पानी या जल या वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट वाटर वी कैन नॉट बी लिव्ड. So just see, there are so many processes by which we can get water. Just discuss about some processes of water. The process through which we can get water, just like step well, pyaw, talabs, were built as people in oldest time. Throughout, it is a good deed to provide water for the thirsty traveler. So when people are traveling from one place to another place in the old time, so they used to use this type of just like step well, pyaw, talab to drink water. Next we can save water by rain harvesting. So you know that water is very important for us, so you should save water. So there are different type of process of water saving. Among them rainwater harvesting is very important. So let us discuss about rainwater harvesting. What is rain harvesting and what type of activities are done during this process? Let us discuss. We can save water by rain harvesting. So let us discuss what is rain harvesting. So here, look at here the process of water, rainwater harvesting. Okay, we can save वाटर रेन वाटर डायरेक्टली टू द वेल. तो वेल को हम कैसे रेन वाटर को भेजते हैं? देखो यहाँ पर रेन आया, कहाँ पर रेन आया, कहाँ पर गिरा? छत के ऊपर. उसके बाद क्या हुआ? छत से जाकर इस टाइप से वेल पर रह गया. ओके. नेक्स्ट वी कैन सेंड वाटर टू ग्राउंड थ्रू हैंड पम्प्स. हैंड पम्प से भी हम पानी कहाँ पर? रेन. देखो रेन यहाँ आया, उसके बाद रेन जाकर ग्राउंड में नीचे तक चले जा रहा है. ओके. नेक्स्ट. Okay, this is the process of rainwater harvesting. These are so many pictures of water tanks. Just see. Okay, this is a water tank. Okay, this is the underground water tank.
there is a symbol of H2O. What is H2O? It is the chemical symbol of water. We will read it in your next class. Hydrogen dioxide. This is a water tank, and here is some question. What is a step well? So step well क्या होता है? It is a process through which you can get water. Okay, step well से हमें water मिलता है कि नहीं? So steps जिसे हम बोलते हैं step by step चलना, इसका मतलब step wells are wells or ponds where water can be reached by going downstairs. पहाड़ की तरह होता है डाउन, स्टेप बाय स्टेप जाकर हमें पानी लाना पड़ता है. मैं इमेज दिखाऊंगा इसमें. सो step wells are the wells or ponds where water can be reached by going downstairs. Next question number 2. Who was Al-Biruni? Al-Biruni कौन है? What did he write about Indian people? Indian people के बारे में वो क्या लिखे हैं? Just here is the answer. Al-Biruni was a visitor who came from Uzbekistan. वो एक visitor है. Who is visitor? Who visits from one state to another state. And just like that, Al-Biruni was a visitor who come from Uzbekistan, and he wrote about the skill of making ponds by Indian people. वो क्या लिखे हैं? The skill of making ponds. जब Al-Biruni इंडिया आए, जब जैसे ऐसे कि पॉन्ड बहुत सारे देखे, वो सरप्राइज हो गए और सोचे ये कैसे पॉन्ड बनाते हैं. एंड द स्किल ऑफ मेकिंग पॉन्ड्स ऑफ इंडियन पीपल अट्रैक्ट्स टू Al-Biruni. Okay. Next, what is rainwater harvesting? It is important question. The process of collecting rainwater is known as rainwater harvesting. Simply rainwater को कलेक्ट करके रखना, उसे हम rainwater harvesting बोलेंगे. ठीक है. The process of collecting rainwater is called rainwater harvesting. In this process, rainwater is collected by making a tank under the ground. So in this process क्या होता है? रेन वाटर इज कलेक्टेड, रेन वाटर कलेक्ट होता है बाय मेकिंग ए टैंक. एक टैंक मेक करके, मतलब टैंक बना के. कहाँ पर? अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे. द वाटर फ्लोज डाउन फ्रॉम द रूफ थ्रू द पाइप इनटू द अंडरग्राउंड टैंक. सो वाटर क्या होता है? फ्लो होता है. कहाँ पे? डाउन, नीचे. कहाँ से? फ्रॉम द रूफ, रूफ से. कैसे? थ्रू द पाइप से. इनटू द, कहाँ तक जाता है? इनटू द अंडरग्राउंड टैंक. एंड इन दिस प्रोसेस द वाटर, रेन वाटर इज सेव्ड. ओके, सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट इट. And this is the content from your book, that water is the basic requirement of our life. We uses it in almost every daily activity. So you know that without water can we live? आप जी सकते हैं पानी के बिना? नहीं. क्यों? क्योंकि हम डेली एक्टिविटी में बहुत सा एक्टिविटी है जिससे हम पानी यूज करते हैं. जब फॉर एग्जाम्पल यू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए तो हम यूज करेंगे. विदाउट ड्रिंकिंग वी कैन नॉट लिव. ओके, पानी पीने के बिना हम जी नहीं पाएंगे. कुकिंग, खाना बनाते हैं कि नहीं. वॉशिंग, बैथिंग, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब जैसे फील्ड में करा जाता है इरिगेशन, नया नया ट्री बनाया जाता है. ओके, एंड इंडस्ट्री. ओके, कारखाना जो होता है, इंडस्ट्री में भी पानी के बिना वो इंडस्ट्री, कौन सा कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो पाएगा. देन वी गेट वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेस लाइक रेन. Okay, so water comes from the rain, river, pond, lake, well, tube, hand pump, etc. Okay, so this is the process to get water. So we discussed that we get water from many sources like rain से भी पानी मिलता है, river से, pond से, lake से. and lake क्या है पता है? lake देखो, इसका इमेज है यहाँ, देखो, this is the lake. Okay, here water is saved, the rain water also. and well तो आपको पता है, ट्यूब, हैंड पंप, एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, रेन इज द लार्जेस्ट एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. कहाँ से हमें ज़्यादा पानी मिलता है? रेन से. एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल अदर रिसोर्सेज लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, एक्सेट्रा. ओके, सो इट इज द process through which
water is come to us. Okay, so rain is the largest and the purest source of water. It constitutes all other sources like river, pond, lake, etc. Okay, next point beta, 71% of earth's surface is covered with water. Okay, अर्थ का कितना परसेंट? 71% of the earth surface is covered with water. But all water is not useful for us. जैसे हम जो पानी पीते हैं वो पानी कम है, जैसे कि सी में तो बहुत सारे पानी है, लेकिन वो पानी हम पी पाते हैं क्या? नहीं. Okay, so just like that, so much water is present in our world, but we cannot use them. Okay, so some less amount of water is useful for us. So you should save a single drop of water also. Okay, so क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ है. So in India, many states face shortage of water, in which Rajasthan faces the most. So in our state, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट होते हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता है. In which, जहाँ पर राजस्थान फेसेस द मोस्ट, राजस्थान में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होता है, कहने से चले जाएगा. सो देयर आर मेनी प्लेसेस इन इट व्हेयर थ्रू आउट द ईयर वेरी लेस लिटिल, मतलब रेनफॉल अक्कर. Okay, so there are so many places in our India, among them small less amount of rainfall occur. In Rajasthan, people built artificial lakes, ponds means johars, जो आप बोलते हैं जोहर means ponds, step wells etc. to collect rain water. So राजस्थान में तो बारिश कम होता है, तो फिर पानी का चाहत भी वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो वो चाहत को मिटाने के लिए सो राजस्थान में क्या क्या बनाया जाता है? आर्टिफिशियल लेक. ओके, सो लुक एट हियर, पानी रहता है कि नहीं इधर? सो इन राजस्थान पीपल बिल्ड आर्टिफिशियल लेक्स, ponds, step wells etc. to collect rain water. Next, here is the image of Gadsisar. Gadsisar lake is one of the best example of collection of rain. So look at here, Gadsisar is the lake where is the, that is a example, best example of collection of rain water. So कैसे रेन वाटर कलेक्शन होता है? देखो, लेक तो बना लिए, उसके बाद लेक बना दिया हमने, उसके बाद रेनफॉल होगा, रेनफॉल के बाद वो पानी वो ही लेक में सेव होकर रहेगा. देन इट वॉज बिल्ड बाय द किंग गडसी. सो इट इज नेम्ड एज गडसीसर बिकॉज द किंग गडसी मेक दिस लेक. इट वॉज बिल्ड बाय किंग गडसी. हो व्हेन? एंड इट इज 650 years ago. कहाँ पर? वेयर? इन जैसलमेर. ये आपको याद रखना है. गडसीसर लेक कौन बनाया है? किंग गडसी ने. एंड यहाँ कब बनाए? 650 years ago. कहाँ पर? इन जैसलमेर. नेक्स्ट, इट comprises of 9 interconnected lakes in which rainwater is collected in such a way that when one lake is full, water flowed into other lake at lower level filling all 9 lakes. So यहाँ पे क्या होता है? 9 लेक रहता है. कहाँ पे? गडसीसर में. क्यों रहता है? क्योंकि अगर एक लेक फुल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? पानी वेस्ट हो जाएगा. कि बट यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पानी दूसरे लेक पर चले जाएगा. इसलिए 9 लेक बनाया गया है. इन सच ए वे दैट व्हेन वन लेक इज फुल, वाटर फ्लोड इनटू other lake and lower level filling all 9 lakes. Then look at here, this is the image of step well. Step well is a well of pond built deep underground with set of ascending stairs. Stair, do you know? Stair मतलब step जो पहाड़ होता है ना, to reach water level and descending stairs. So क्या होता है? जैसे कि एक ट्रैवलर को पानी चाहिए, वो क्या करेगा? इस जो पहाड़ बनाया गया है इस स्टेप के सहारे वो नीचे जाएंगे. जाने के बाद यहाँ से वो पानी यूज करेंगे, उसके बाद फिर वो पहाड़ के स्टेयर्स के साथ स्टेप होकर ऊपर आ जाएंगे. इसीलिए इसका नाम है स्टेप वेल. स्टेप वेल इज ए वेल और पॉन्ड बिल्ड डीप अंडरग्राउंड विथ सेट ऑफ असेंडिंग स्टेयर टू रीच वाटर लेवल एंड डिसेंडिंग स्टेयर. देन जोहार्स आर huge
मैन मेड टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर। सो देखो जोहड़ क्या होता है, जैसे कि just like this is a johar and this is a huge man-made tanks to collect rainwater. Water from these sources soaked into ground and increases the level of underground water. So underground water also become fulfilled by this process. Water from these sources soaked into ground and increases the level of underground water. So पानी वेस्ट नहीं होता है, कहाँ पर जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वर और टैंक्स टू कंजर्व रेन वाटर। ओके, सो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर को बचाना, रेन वाटर को सेव करना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्निक, इज ए टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ व्हाट रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वर। मतलब जैसे कि अगर नदियाँ में हम दे देंगे, वो हो गया नेचुरल रिजर्वर में हम दे दिए, वरना हम एक बड़ा सा टैंक बना कर रखेंगे। ओके, और टैंक टू कंजर्व रेन वाटर, दैट इज एग्जाम्पल के लिए रेन वाटर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। जैसे रूफ में हम बना दिए, रेन वाटर आके हमारे रूफ में रहेगा, उसके बाद हम एक उसे बड़ा सा टैंक में रख के वो पानी सेव कर लेंगे। इट इज आवर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Okay, people use different kinds of pots to store water like earthen pots. So what is earthen pot? The pot made up of soil. Soil से जो बनाया गया है, ब्रास से बनाया गया तो ब्रास पॉट्स, कॉपर से बनाया गया तो कॉपर पॉट्स इन ओल्डन टाइम। ये ओल्डन टाइम में यूज हो रहा था। नाउ देयर आर मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर इन इंडिया। सो वाटर को लेकर हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम में बहुत सारे फेस्टिवल भी होता है। न्यूली वेड ब्राइड वर्शिप द वाटर बॉडी ऑफ द विलेज इन वाटर उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है, जो न्यूली जो मैरिज करके जो ब्राइड जाते हैं वो वाटर बॉडी को पूजा करते हैं। देन गंगा स्नान, जैसे गंगा हम बोलते हैं, गंगा स्नान करने से पाप धो जाता है। छठ पूजा आर ऑल द फेस्टिवल रिलेटेड टू वाटर। देन इन इंडिया पीपल वर्शिप द रिवर्स लाइक गंगा, जमुना, गोदावरी लाइक गॉडेसेस। हम माता जैसे बोलते हैं गंगा माता, तो इसे हम गणेश की तरह पूजा करते हैं। दे सिंग डांस एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल नियर वाटर बॉडीज। वो क्या करते हैं, सिंग गाना गाते हैं, डांस करते हैं एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल नियर वाटर बॉडीज। जैसे कि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल होता है जो वाटर बॉडी के पास में ही होता है। Nowadays people pollute the water bodies by bathing, washing and clothes, throwing garbage and industrial waste. आजकल क्या होता है, हम पानी को पॉल्यूट कर देते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं, जो पानी हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, पॉल्यूट होना, हाउ डू मीन बाय पॉल्यूट? ओके, इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी द पॉल्यूशन occur. That means the water becomes so bad that we cannot use that type of water. So we say that the water becomes polluted. Okay, so in modern time people get water from tube wells, bore wells, hand pumps, taps and water supply lines. आजकल क्या होता है, हमें पानी कैसे मिलता है? ट्यूब वेल से, बोरवेल से, हैंड पम्प से, टैप से एंड वाटर सप्लाई लाइन्स। So they store water in their houses in storage tank और प्लास्टिक और सीमेंटेड। हम क्या करते हैं, पानी जैसे सप्लाई पानी आता है, हम किसी से स्टोर कर देते हैं हमारे प्लास्टिक पे टैंक में या सीमेंटेड टैंक में। दे ऑल्सो पे बिल टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर यूजिंग वाटर। सो हम जैसे कि पानी का बिल भी देते हैं कि नहीं, 1 महीने 2 महीने में, ठीक है। सो दे ऑल्सो पे, हमें बिल भी देना पड़ता है। This water is safe for household activities and drinking. So it is safe for our household activities and drinking. As the fresh water resources are reducing day by day due to global warming, polluted rivers and lower level of underground water due to over exploitation by human. आजकल जैसे मैंने बताया, हमारे वर्ल्ड में तो बहुत वाटर है, लेकिन उसमें से जो फ्रेश वाटर, जैसे हम जो पानी को हम पी सकते हैं, that type of water is very less in this world. As the fresh water
टीचर्स आर रेड्यूसिंग मतलब कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, polluted rivers and lower level of underground water due to over exploitation by human। ओके, आजकल जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ख़राब हो जा रहा है, जैसे कि हम कारखाना बना रहे हैं और उसका वेस्ट पानी हम नदी में छोड़ देते हैं। क्या होता है? वो नदी का पानी ख़राब हो जाता है, जैसे कि हम साइंटिफिकली बोलेंगे, जैसे कि नदी का पानी पॉल्यूट हो जा रहा है। We should not waste water and use it judiciously for us and our future generation। ओके, अगर हम पानी वेस्ट करेंगे, जैसे कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे उनके लिए पानी नहीं रहेगा। We should not waste water and use it judiciously। हम इसे judiciously मतलब जितना हमें चाहिए हम उतना पानी खर्चा करेंगे according to our need। Okay, so water conservation means using water wisely, not contributing to unnecessary wastage। Water conservation means using water wisely, not contributing to unnecessary wastage। Okay, so water conserve, हमें वाटर कंजर्व करना है, मतलब वाटर को सेव करना है। कैसे करेंगे? यूजिंग वाइजली, हम वाइजली यूज़ करेंगे, मतलब जितना पानी चाहिए हम उतना पानी ही यूज करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं करेंगे। नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू अननेसेसरी वेस्टेज, अननेसेसरीली हम पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आई रिपीट इट, कंजर्व वाटर बाय, कैसे करेंगे? दिस इज द प्रोसेस। टेक शॉर्ट शावर, हम शॉर्ट शावर जैसे कि नहाने के टाइम में हम शॉर्ट शावर यूज कर सकते हैं। टर्न ऑफ वाटर व्हाइल ब्रशिंग एंड शेविंग। ओके, जब भी बहुत सारे लोग जैसे कि ब्रश करने के टाइम वो टैप को खुला रख देते हैं, हम रखना नहीं चाहिए। सेविंग के टाइम में भी चेक लीकेज, हम लीकेज को भी चेक करना चाहिए, कहाँ पे लीकेज होगा तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। देन यूज सम वाटर फ्रॉम मेनी पर्पजेस एक्सेट्रा। ओके, सो हम पानी को अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारे ज़रूरत के साथ यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज योर होम असाइनमेंट। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड सेंड दिस question to your Google Classroom। So question is, how do you get water? Next, name the source of water in which rainwater is collected, and this is the all questions you have to write these questions। Okay, so this is your homework, it is all about our topic, we'll discuss more about it in our next class।